All right. So, bache, today we'll be first discussing the reflection of light. We are going to begin with revision. After this is done, half of the time we'll be revising this chapter. Then we'll be going on to the science sample paper. Okay. So, bache, this term 1, you are going to get 2 chapters from light. Light के 2 chapters आ रहे हैं. One is reflection and refraction of light. Second is human eye and colorful world. In reflection and refraction of light, complete syllabus, nothing has been deleted except practical uses of spherical mirrors and lenses. उसको delete कर दिया गया है. And human eye and colorful world में structure of eye and human eye and defects and its correction, वो portion कट हुआ है. तो फिजिक्स में बच्चे ये पोर्शंस आ रहे हैं आपको इस बार. और बच्चे अपने आप में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिजिक्स का, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें, बायो में लाइफ प्रोसेसेस 10 मार्क्स की वेटेज है उसकी. एक ही चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेसेस, उसकी वेटेज 10 मार्क्स है बायो से. केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आ रहे हैं. ऑलराइट, तो उनकी जो वेटेज बन रही है वो है 16 मार्क्स. बच्चे सॉरी, केमिस्ट्री में 2.5 कह सकते हो. मेटल नॉन मेटल का बहुत सारा पोर्शन डिलीट है, तो आपको 2.5 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसकी वेटेज 16 मार्क्स है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स की वेटेज आपकी 14 मार्क्स है फॉर द 2 चैप्टर्स. ऑलराइट, सो फिजिक्स के भी काफी सारे मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं. एंड इट इज अ इजी पोर्शन, इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप कंसेप्चुअली इसको समझ के करो तो ये बहुत इजी पोर्शन है. ऑलराइट, so bache, first of all we are going to start up with reflection of light. तो हमने बच्चे सिमरन प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था बोर्ड का. वो हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए थे, 20 क्वेश्चंस रह गए हैं अभी भी. तो वो आज हम आधा सेशन आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डालेंगे, डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर हम उसको करेंगे solve questions. All right. Chalo. So, bache, what do we understand by the term reflection of light? Bache, this is a very simple formula, easy, you can say phenomena to understand. Let's say you have a mirror. Just a moment. Okay. Let me just change this. All right. Okay. So let's say बच्चे you have a mirror. ये आपका mirror है. All right. अब बच्चे when you talk about mirror, mirror has a polished surface, and let's say you have a light ray which is incident on the mirror. अब बच्चे जब भी light ray mirror के ऊपर incident होगी, okay, जब भी light ray mirror के ऊपर incident होगी, on striking this smooth reflecting surface, it is going to get reflected. Okay, इसकी रिफ्लेक्शन होगी. So this is incident ray, this is reflected ray. अब this phenomena बच्चे where light is striking a polished surface and it returns to the same medium, this phenomena is known as reflection of light. तो बच्चे इसमें हम लेबलिंग करेंगे. This is incident ray, incident ray. जो रे रिफ्लेक्ट हुई है इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे. Okay, reflected ray. अब बच्चे at the point of incidence where the incident ray strikes the mirror, यहां हम एक imaginary line बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, normal ray. What is the ray known as? Normal ray. Normal ray is drawn at the point of incidence. ये हमारी normal ray हो गई. अब बच्चे normal ray is perpendicular drawn from the reflecting surface at the point of incidence. अब बच्चे कैन यू टेल मी व्हाई डू वी ड्रॉ दिस नॉर्मल रे? ये नॉर्मल रे हम क्यों ड्रॉ करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ताकि हम एंगल्स मेजर कर सकें. दिस एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे, एंगल आर. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of reflection. Angle of incidence is angle made by incident ray to normal. Angle of reflection क्या है?
रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा नॉर्मल से। ओके, सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हेन एनी लाइट, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स, ये आप सिंपली लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेफर्स टू reflection of light refers to bouncing back, या सिंपल लिख लेते हैं रेफर्स टू, या यही लिखते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और रिटर्न ऑफ लाइट into the same medium. Into the same medium after striking a reflecting surface. After striking a reflecting surface. ठीक है, जब भी बचे लाइट रे किसी भी प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करती है और जब उसको स्ट्राइक करके वो सेम मीडियम में चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अच्छा, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हेन रिफ्लेक्शन इज अकरिंग लाइट विल ट्रैवल बैक इनटू द सेम मीडियम। अब अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट इट्स पाथ विल चेंज। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, सिर्फ उसका पाथ चेंज होता है। पर बच्चे जब रिफ्रैक्शन होती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड कर जाती है एंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसकी स्पीड चेंज होती है। रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती। ऑलराइट, तो ये चीज एक हम याद रखेंगे। अब बच्चे डिपेंडिंग ऑन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये जो हमने इमेजिनरी रे बनाई है इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। ओके, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं मिरर को m डैश, दिस इज आवर मिरर। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉर्मल रे, जब आप नॉर्मल रे की बात करते हो, ये तो इमेजिनरी रे है। ऑलराइट, अब बेस्ड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, देयर आर सर्टेन लॉज। ओके, तो इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक लॉज हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, आई थिंक क्लास 8 में भी पढ़े होंगे या 7th में शायद पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी बेसिक। तो बच्चे जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पहला लॉ है, द फर्स्ट लॉ, व्हाट डज इट से? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब है बच्चे? अगर लाइट रे वर्टिकल प्लेन में आएगी, अगर लाइट रे वर्टिकल प्लेन में आएगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस वर्टिकल प्लेन में ही जाएगी। वर्टिकली आई थी, वर्टिकली ही जाएगी। और नॉर्मल तो बच्चे वर्टिकल प्लेन में ही बन रहा है अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट रे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आई थी तो लाइट रे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही जाएगी। तो दे ऑल लाई इन वन प्लेन। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे
reflected ray, incident ray, reflected ray, and normal. And normal ray. Lie in one plane. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, दे लाई इन वन प्लेन. सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, the angle of incidence is equal to angle of reflection. तो बच्चे हम इसको कैसे लिखते हैं? एंगल आई इट इज इक्वल टू एंगल आर. एंड बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, चाहे जैसी मर्जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस, अनइवन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस एंड सो ऑन. एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस. तो ये बच्चे हमारे दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं. अब बच्चे ये जो हमने सेकेंड लॉ लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस. क्योंकि बच्चे इसी से हम मेजर करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा. I'll just give you a simple numerical. Let's try to understand how this law is used. Okay. So let's say you have a plane mirror. आपके पास एक प्लेन मिरर है. This is our mirror. Alright. अब बच्चे इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आई पर्टिकुलर एंगल पे और रिफ्लेक्ट हो गई. ऑलराइट, अब आपको दिया गया है कि ये जो एंगल है ये वाला, इट इज 30 डिग्री. ऑलराइट, इट इज 30 डिग्री. ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. ऑलराइट, अब बच्चे अगर आप इसका नॉर्मल बनाओ तो नॉर्मल यहां बन गया. ऑलराइट, आपको बोला जा रहा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल. ऑलराइट, कैन यू फाइंड दिस एंगल? ये एंगल आप निकाल सकते हो. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए. बताइए, 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी 60 डिग्री. ये आपने कैसे निकाला बच्चे? दिस इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री के लॉज लगेंगे, रूल्स लगेंगे. अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, नॉर्मल इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री तो ऑलरेडी निकल गया. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी 90 माइनस 30. Alright, 90 minus 30 and that would be equal to 60 degree. तो y किसके इक्वल होगा? y किसके इक्वल होगा बताइए? y would be equal to 30 डिग्री. क्योंकि बच्चे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा. दिस वुड ऑल्सो बिकम 60. तो 90 minus 60 would be 30. तो y is equal to 30 डिग्री. तो बच्चे देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है. Alright, this is how you will find the answer. चलो, I'll give you another question. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं.
Okay. For which angle of incidence the light ray retraces its path. बच्चे किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रे क्या करेगी? अपना पाथ रिट्रेस करेगी. रिट्रेस का मतलब है जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे चली जाएगी. बच्चे यू हैव टू टेल मी एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए. ओके, देवादत्तन इज सेइंग 90 डिग्री, सिमरन इज सेइंग 90 डिग्री. सिर्फ अरहाम ने मुझे अलग आंसर दिया है 0 डिग्री. जानवी ने भी अलग आंसर दिया है 0 डिग्री. देवादत्तन ने और सिमरन ने 90 डिग्री बोला है. आलोक बोल रहा है 100 डिग्री. ओ सॉरी 0 डिग्री. तो बच्चे इतना कंफ्यूजन क्यों है? व्हाई दिस मच कंफ्यूजन? थोड़ा सा दिमाग लगाइए. रिमेंबर दी नॉर्मल रे. नॉर्मल रे को याद रखिए, मिरर को याद रखिए और फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेट मी ड्रॉ अ मिरर फॉर यू, देन यू विल अंडरस्टैंड. बच्चे लेट्स से दिस इज आवर मिरर. लेट्स से दिस इज आवर मिरर. ये हमारा मिरर है. अब मुझे लाइट रे रिट्रेस करना है पाथ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिट्रेसिंग द पाथ? रिट्रेस का क्या मतलब है? बच्चे जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे वापस जाए. लाइट रे आई ऐसे, स्ट्राइक हुई और उसी पाथ पे वापस जाए. तो बच्चे व्हेन विल दिस बी पॉसिबल? एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी 0 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी 90 डिग्री. बताइए यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? ओके, इट शुड बी 0 डिग्री. बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस is 0 degree. Simran, please remember, angle of incidence is measured from normal ray. Angle of incidence is measured from normal ray. तो angle of incidence कितना होगा यहाँ? Okay. Angle of incidence should be 0 degree. बच्चे जब angle of incidence 0 है तो angle of reflection भी क्या होगा? 0 डिग्री. ठीक है. और इस केस में क्या होगा? जब आपकी लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो वो उसी बात पे वापस चली जाएगी. हम एंगल कहां से मेजर करेंगे? नॉर्मल रे से. हाँ जी बोलो सिमरन. सर, understood that if the angle of incidence is 0 degree, then only the light ray would retrace its light ray fall on the mirror. ओके. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे 0 डिग्री है तो उसका ये मतलब है कि वो मिरर पे 90 डिग्री पे गिर रही है ना. पर क्वेश्चन में मैंने पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. मिरर के साथ उसका 90 डिग्री एंगल है. पर बच्चे नॉर्मल रे जो है उसके साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल रे के साथ मेजर करेंगे, मिरर के सरफेस से नहीं मेजर करेंगे. No, sir, that I understood, but I was asking if the light ray falls at 90 degree. ओके. सिमरन, आपकी बच्चे जो आवाज है ना कट रही है. आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली. इफ यू कैन प्लीज राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स में. आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए एक बार. सिमरन, आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस क्लियरली. चैट बॉक्स में लिख दो. ऑलराइट. तो बच्चे इस केस में क्या होगा? The light ray will retrace its path. So angle of incidence is equal to angle of reflection. अगर angle of incidence 0 हो जाएगा तो reflection के बाद क्या होगा? What is going to happen?
It is going to retrace its path. चलो, तो I hope this is clear to everybody. अब चलते हैं आगे बचे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. Image formation by plane mirror. Again, something which is commonly used in our daily lives. Image formation in plane mirror. अब बच्चे when you talk about image formation in plane mirror, जब हम plane mirror की बात करते हैं, ठीक है ना, we need to understand plane mirror produces what? Virtual images. Okay, a plane mirror will produce virtual images. और plane mirrors में जो बचे reflecting surface है वो कैसी होंगी? It would be flat reflecting surfaces. They have a flat reflecting surfaces. Simran, you are saying what would be ray diagram if the light ray falls at an angle of 90 degree on the mirror? ये देखो बच्चे मैंने शो कर तो दिया है, मैंने बनाया तो है ये देखिए दिस वन 90 डिग्री पे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, 90 डिग्री पे आई, रिफ्लेक्ट हो गए वापस चली गई. एरो देखो ऐसे आई ऐसे ही चली गई. सिमरन, इज इट क्लियर? You are saying 90 डिग्री, तो बच्चे यही तो सिमरन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग. आप कह रहे हो कि ऐसे आई लाइट रे, अगर बच्चे ऐसे लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है? रिफ्लेक्शन तो तभी होगी ना अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करेगी. अगर आप ये कह रहे हो कि 90 डिग्री पे मिरर पे गिरी, तो बच्चे मिरर पे 90 डिग्री पे गिरी मतलब वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ. जैसे आई वैसे ही चली जाएगी. एरो की डायरेक्शंस देखिए. आई होप सिमरन, इज दैट क्लियर? सर इस केस में तो जो लाइट रे है वो 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है. तो सर वो वाला कौन सा केस है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 90 डिग्री होगा, वो पूछना था. बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री कैसे लोगे आप? ऐसे आएगी ना लाइट रे. यस. तो वो कहाँ स्ट्राइक करेगी मिरर को? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कैसे स्ट्राइक करेगी वो? तो सर पूरी वो मिरर के और लाइट रे की पूरी एक ही लाइन बन जाएगी ना फिर. बच्चे देखो ऐसे कैसे रिफ्लेक्शन होगी? लाइट रे तो पैरेलल आ रही है मिरर के साथ एक तरीके से. तो सर उस केस में रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी फिर. कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे हम बताओ? ओके सर. वो स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे. अगर ऐसे भी आएगी तो मिरर के इधर लग गई, वहां कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे? यस सर. है ना. तो हमें मतलब रिफ्लेक्शन तभी देखने के लिए मिलेगी ना अगर वो मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक कर सकती है ऐसे एंगल पे है. अगर 90 पे आ गई तो पैरेलली आ रही है या मिरर के कॉर्नर्स को स्ट्राइक करेगी, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगी? ओके सर. ऑलराइट बच्चे, चलो. ओके, सो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ओके लेट्स ड्रॉ अ रे डायग्राम. इसके लिए रे डायग्राम बना के देखेंगे. ओके alright, so I'll just change the color. Okay, let's say बच्चे let's say this is our plane mirror. ये हमारा प्लेन मिरर है. मैंने इसको अब ऐसे रखा है, वर्टिकल रखा है मैंने. ओके अब बच्चे मुझे एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बनानी है. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस है जो एक परपेंडिकुलर लाइन पास होगी मिरर के थ्रू एंड थ्रू. इसके ऊपर हम इमेजेस बनाएंगे. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट, अब आपको क्या करना है? विल टेक एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे. लेट्स से दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. बच्चे ऑब्जेक्ट को हमेशा अपराइट रखना है. अपराइट मतलब इरेक्ट, और लेफ्ट साइड में हम रखते हैं. ओके
Yes, Aram, we will continue with the sample question paper. We are just going to discuss today the image formation in plane mirror. That's it. उसके बाद हम 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, फिर वो कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल एंड द क्लास. ओके, ऑलराइट. चलो, तो बच्चे जब आपको लाइट रे दिखानी है, कैसे दिखाएंगे हम लाइट रे? तो इसमें आपको क्या करना है, यू नीड एटलीस्ट 2 लाइट रेस. 2 लाइट रेस आपको चाहिए. ओके, और ये लाइट रेस कहां से स्टार्ट करोगे? फ्रॉम द टिप. यहां से एक लाइट रे आई और एक लाइट रे लेट से यहां स्ट्राइक हुई. तो बच्चे यू विल यूज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करोगे. तो बच्चे यहां लाइट आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, और यहां जो लाइट रे आई वो कैसे जाएगी? जिस एंगल पे वो स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी. ये एंगल सेम होंगे. ओके, अब बच्चे व्हेनेवर यू आर ड्राइंग रे डायग्राम्स, कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट 2 लाइट रेस को मीट कराओ. अब बच्चे मिरर के इस साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये तो ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी. तो मिरर के सामने तो कोई चांस नहीं है कि कोई 2 लाइट रे मिल जाए. तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू रीट्रेस देम. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें रीट्रेस करना पड़ेगा. रीट्रेस का क्या मतलब है बच्चे? आप इन लाइट रेस को पुल करोगे पीछे. तो यहां, ओके, यहां लाइट रेस मैंने रीट्रेस कर ली. ओके, अब बच्चे जहां ये रेस मिलेंगी वहां आपकी इमेज बनेगी. ओके, सो दिस इज वेयर योर इमेज इज फॉर्म्ड. मेरी थोड़ी सी गलत बनी है बच्चे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना है उतनी दूरी पे ही आपकी इमेज बननी चाहिए. तो मेरा ये गलत हो गया है थोड़ा सा. लेट मी जस्ट ट्राई टू सी इफ आई कैन करेक्ट दिस. ऑलराइट, इधर तक ले आते हैं. ओके, और इसको इधर ले जाते हैं. चलो, अब सही कर लिया है मैंने. थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से सही किया है बच्चे, ताकि हमें करेक्ट रे डायग्राम मिल जाए. Here it is. Okay, अब थोड़ा सही लग रहा है. तो बच्चे whenever you place any object in front of the plane mirror, जितने डिस्टेंस पे आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखोगे, उतने डिस्टेंस मिरर के पीछे आपको इमेज मिलेगी. तो बच्चे ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज को हम क्या कहेंगे? दिस इमेज विल बी नोन एज वर्चुअल इमेज. व्हाट इज दिस इमेज नोन एज? दिस इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज. व्हाई दिस इज वर्चुअल इमेज? क्योंकि बच्चे ये इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं बन सकती. सो एनी इमेज इन प्लेन मिरर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? इमेज इन प्लेन मिरर is virtual. Image in plane mirror is virtual. Plane mirror is virtual. What do we understand by the term virtual? This image cannot be formed on screen. Cannot be formed on screen. बच्चे आप इस इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते. दिस इज अ वर्चुअल इमेज. ऑलराइट, और आप क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे इसका? वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट भी है. दैट इज अंडरस्टूड. सेकेंड, हम इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे बच्चे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. लेट से मिरर के 10 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कितने सेंटीमीटर पे बनेगी? मिरर के बिहाइंड 10 सेंटीमीटर. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. या आप लिख सकते हो इमेज साइज. इमेज का जो साइज है बच्चे वो भी ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल है. यहां मैग्निफिकेशन जो होगी +1 है. मैग्निफिकेशन इज +1, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. इमेज साइज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. Okay, image size is same as size of object. तो बच्चे can we say magnification is equal to +1? क्या हम कह सकते हैं? अगर इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के सेम है तो can we say it is magnification equal to +1?
ओके उसके बाद है आगे बचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल है? इमेज डिस्टेंस के इक्वल। बच्चे जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतने डिस्टेंस आपको मिरर के पीछे इमेज मिलेगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। इमेज इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है बच्चे, लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है? अगर बच्चे आप मिरर के सामने खड़े हो, यू लिफ्ट योर राइट हैंड, तो इमेज का कौन सा हैंड ऊपर जाएगा? लेफ्ट। आपको ऐसा लगेगा, तो लेटरल इन्वर्जन होती है, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। ऑलराइट, तो बच्चे यहां हमारा जो इनिशियल पोर्शन था जस्ट बिफोर द स्फेरिकल मिरर्स, द बेसिक इन्फो, दैट इज कंप्लीटेड टुडे। आज हम बच्चे रिफ्लेक्शन में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में बच्चे हम स्फेरिकल मिरर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको सारा पोर्शन समझ आ गया? इफ इट्स क्लियर वी विल मूव ऑन टू द सैंपल क्वेश्चन पेपर नाउ। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द सैंपल क्वेश्चन पेपर बच्चे। तो वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड टिल 40 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। Let's move on to question number 41. In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and then absorbed? Okay, Himanshi, I'll repeat that portion once again. Let me just go through the sample paper now. मिरर में मैं दोबारा आपको प्लेन मिरर में इमेज समझा दूंगा। All right. Okay. In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and then absorbed? तो बच्चे ये ग्रुप तो डीकंपोजर्स हैं। डीकंपोजर्स में होता है ऐसा, आप उन्हें सैप्रोट्रॉफ्स भी कह सकते हो। तो बच्चे इसमें देखिए सारे डीकंपोजर कहाँ हैं? ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। बच्चे दीज आर ऑल फंजाई, तो आप इन्हें डीकंपोजर्स के ग्रुप में डाल सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। पहले वाले में बच्चे ग्रीन प्लांट्स हैं, अमीबा है, तो ये सैप्रोट्रोफ्स नहीं है, तो ऑप्शन इज बी, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। बच्चे फंजाई को आप सैप्रोट्रोफ्स कहते हो, और सैप्रोट्रोफ्स के अंदर ये मैकेनिज्म होती है कि वो अपने बॉडी के बाहर न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 42। इन अ पर्सन टिब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। टिब्यूल पार्ट जो है नेफ्रॉन का बच्चे वो फंक्शन नहीं कर रहा। व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन यूरिन फॉर्मेशन? बच्चे टिब्यूल पार्ट आप कह सकते हो ये लूप ऑफ हेनली, जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली पार्ट होता है। तो बच्चे वो क्या रोल प्ले करता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, टिब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग। तो बच्चे मेरे को जो समझ आ रहा है कि टिब्यूल पार्ट है लूप ऑफ हेनले, तो मुझे जो लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहां होती है? लूप ऑफ हेनले में। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन। बच्चे अगर नेफ्रॉन फंक्शन नहीं कर रहा, ग्लोमेरुलस फंक्शन नहीं कर रहा, तब जाके फिल्ट्रेशन नहीं होगी। पर बच्चे टिब्यूल पार्ट में क्या होता है? एक्सेस वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन नहीं, मतलब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, तो यूरिन विल बी डाइल्यूटेड। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। एक बार हम इनकी मार्किंग स्कीम में भी चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। लेट मी जस्ट चेक। लेट्स चेक व्हाट दे हैव गिवन। ये देखो बच्चे डी ऑप्शन ही दिया है जो हम सोच रहे थे। अगर ट्यूब्यूल पार्ट फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो बच्चे वाटर की कंसंट्रेशन, अविनाश यूरिन विल बी फॉर्म्ड। लूप ऑफ हेनले अपना काम नहीं कर रहा ना,
ग्लोमेरुलस तो अपना काम कर रहे हैं, प्राइमरी फिल्ट्रेट तो बनेगा। टिब्यूल जो है लूप ऑफ हेनले वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बचे द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस is 3 times the size of flame and distance between lens and image is 80 centimeter. At what distance should the candle be placed from lens? तो बच्चे लेंस फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V over U. ऑलराइट, तो बच्चे आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज 80 सेंटीमीटर, और बच्चे रियल इमेज है, इट इज अ रियल इमेज। तो इन लेंसेज में रियल इमेज बनी है बच्चे, तो दैट मींस मैग्निफिकेशन इज -3, मैग्निफिकेशन इज -3, और इमेज डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लोगे 80 बाई U, तो बच्चे U किसके इक्वल होगा? -80/3। मैग्निफिकेशन लेंसेज में कैसे निकालते हैं? V/U, एंड इट्स अ रियल इमेज, सो मैग्निफिकेशन वुड बी -3। इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे बच्चे लेंसेज में, रियल इमेजेस में इमेज डिस्टेंस लेंस में पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट वुड बी -80/3। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 44। बच्चे जब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 44 देखते हैं। हाँ जी आकृति। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, आई हैव डाउट इन 42 क्वेश्चन नंबर। 42 में अभी कैसे डाउट आ गया? हम तो उसके आगे चले गए। यस सर। सर वो मैंने क्वेश्चन चैट सेक्शन में लिखा था सर। ये आपने ट्यूबल पार्ट सर आपने लूप ऑफ हेनले को बताया है सर, वो कलेक्टिंग डक्ट भी तो हो सकता है ना सर? बच्चे मुझे आप एक चीज ये बताइए कि ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट जो है उसका क्या रोल होता है उसमें, यूरिन फॉर्मेशन में? यस सर। यूरिन फॉर्मेशन में कलेक्टिंग डक्ट का क्या रोल होता है? सर वहां पे तो यूरिन सर कलेक्ट होते हैं सर। यूरिन कलेक्ट होता है, मतलब सर अलग अलग सर जो नेफ्रॉन्स होते हैं सर वहां से यूरिन आके उसमें सर कलेक्ट होता है, मतलब कलेक्ट नहीं सर, वहीं से ब्लैडर में जाता है सर। तो फिर अगर हम उस तरीके से सोचें तो बच्चे यूरिन तो वहां जाके फॉर्म ही हो गया एक तरीके से, और आप थोड़ा सा गलत फंक्शन बोल रहे हो। वहां ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है। ट्यूबुलर सेक्रीशन का क्या मतलब है कि जो आपका कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है, कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में क्या होता है कि अगर कोई चीज एक्सेस में अगर अब्सॉर्ब होगी है तो सॉल्ट वाटर वगैरह वो वापस डाल दिया जाता है फिल्ट्रेट के अंदर, और उसके बाद यूरिन बन जाता है। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से ऑप्शंस देखो। व्हाट आर दी ऑप्शंस विद यू? यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ग्लोमेरुलस की बात तो हो ही नहीं रही, टिब्यूल पार्ट है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, ये भी नहीं हो सकता। अगर एक पोर्शन इफेक्ट हो गया है तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी तो इफेक्ट होगी। ऑलराइट, अब अगर सी की बात करो, यूरिन इज मोर कंसेंट्रेटेड। भाई यूरिन तो तब कंसेंट्रेट होगा ना अगर टिब्यूल उसको एब्जॉर्ब कर रही है। अगर एब्जॉर्ब कर ही नहीं रही तो क्या होगा फिर? मोर डाइल्यूटेड होना चाहिए ना। यस सर। ऑलराइट, और एक चीज ये भी याद रखिएगा, जब हम टिब्यूल्स की बात करते हैं ना, तो टिब्यूल्स में हम जनरली लूप ऑफ हेनले, पीसीटी और डीसीटी की बात करते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्स की बात नहीं करते हम। कलेक्टिंग डक्ट्स टिब्यूल्स में नहीं हम काउंट कर रहे। टिब्यूल्स में हम क्या काउंट करते हैं? मेनली लूप ऑफ हेनले। ओके सर। ठीक है, क्लियर? सर टिब्यूल पार्ट में सिर्फ
लूप ऑफ हेनले सर डीसीटी को भी काउंट करते हैं क्या? डीसीटी और देखो बच्चे, अगर आप अब ऐसे बोलोगे कि डीसीटी भी कुछ काम करता है, पीसीटी भी कुछ काम करता है, वासा रेक्टा भी है बच्चे, ऐसे तो फिर बहुत सारे पार्ट्स हैं। सर ठीक है, डाउट, यस सर। सर डाउट ये था कि नेफ्रॉन की जो पार्ट्स हैं उनमें से टिब्यूल पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं सर, बस ये बता दो। बच्चे आप इसको लूप ऑफ हेनले पिक करेंगे। क्लियर? ओके सर। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 44। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके बच्चे, आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। अब आप इसकी इमेज बनाइए, यहां से लेके जाइए पैरेलल लाइट रे, इसको निकालिए फोकस से, फोकस से निकालिए, इसको लेके जाइए पैरेलल। तो बच्चे इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बनेगी, यहां बनेगी इमेज। ओके तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी वर्चुअल, ये ऑप्शन तो गलत होगा, दैट वुड बी रॉन्ग, ये तो हो नहीं सकता, रियल इमेज बनेगी। सेकेंडली, रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दिस कैन हैपन। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रही है, दैट कैन हैपन। ओके जस्ट अ मोमेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू दिखाया है, ऑल राइट। ओके जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू पिक सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां लाइट रे ऐसे गई तो जिस पाथ पे जाएगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पाथ पे वापस आएगी। ओके यहां, ऑल राइट। तो रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल along the same path as incident ray but in opposite direction, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर आप बच्चे रे डायग्राम भी बनाओगे तो ऐसे जाएंगी लाइट रेस ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के। ओके, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। बच्चे कॉनकेव मिरर में रियल इमेजेस बनती हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, एफ वुड बी नेगेटिव। तो अगर मैं इसका ऑप्शन पिक करूं तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला तो होगा नहीं, 2 3 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन। ऑल राइट, चलो तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, सी ऑप्शन हो गया इसका। इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, वर्चुअल इमेज तो बन ही नहीं सकती, इट इज अ कॉनकेव मिरर, जिस पोजीशन पे रखा हुआ है उधर वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती। अगर आप इसको यहां रखोगे फिर वर्चुअल इमेज बन सकती है पीछे, पर अब उस पोजीशन के हिसाब से यहां वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। ऑलराइट, इट इज नोटेड। ओके, अब बच्चे यहां देखिए, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट इज बेंडिंग हियर। तो बच्चे ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, फिर अगेन रेयर है। और बच्चे जब लाइट रे यहां से गई तो अनडिविएटेड चली गई, तो इसका क्या मतलब है, 3 to 4 देयर इज नो डिविएशन। तो मतलब मीडियम 3 और मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है क्योंकि अनडिविएटेड गई है। अब आपको कंक्लूड करना है, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। मीडियम 1 की डेंसिटी तो नियरली इक्वल है मीडियम 3 के। मीडियम 2 इज रेयरेस्ट मीडियम, मीडियम 2 इज रेयरेस्ट, दैट इज रॉन्ग, वो तो डेंस है। मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1। बच्चे व्हाट डू यू थिंक, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, एंगल तो सेम ही लग रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखते हैं, मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, तो ये करेक्ट ऑप्शंस है। मीडियम 1 और मीडियम 3 में जो बचे डिविएशन है नियरली सेम है, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1 एंड 3, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बचे मीडियम 1 एंड मीडियम 3
अगर आप उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करोगे तो नियरली सेम है, बट 2 जो है मीडियम 1 और 3 से ज्यादा डेंसर है। इज दिस क्लियर? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? 4, ऑप्शन 4, डी ऑप्शन। ऑलराइट, चलो आगे। बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, इट इज 1.65 and that for alcohol is 1.36 with respect to air. What is refractive index of flint glass with respect to alcohol? तो बच्चे आपको यहां निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास की रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? दोनों की आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो बच्चे इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको जिस मीडियम की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे। तो हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओवर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। अब बच्चे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.65 ओवर 1.36। तो बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1.21, 1.11, 1.01। कैलकुलेट करके बताइए अब। 1.21 बी ऑप्शन। ओके, इज इट क्लियर एवरीबडी? जब भी आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिस मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगी, जिससे लाइट आ रही है उस मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नीचे लिखेंगे। ऑलराइट, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1.21। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 47। Above lens has a focal length of 10 centimeter. Object of height 2 millimeter is placed at distance of 5 centimeter from the pole. Find height of the image. All right. तो बच्चे हाइट ऑफ इमेज हम कैसे निकाल सकते हैं? V by U is equal to height of image by height of object. अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। बच्चे हमें इमेज डिस्टेंस नहीं दिया। इमेज डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. दिस इज द लेंस फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करके आंसर निकालिए, कितना आता है? फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी? पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चे, इसकी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चे आपको -5। ओके, फाइंड v की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये हो जाएगा बच्चे 1/10, u इधर आके माइनस माइनस प्लस और इधर आके माइनस, तो ये बन जाएगा 1/5 इक्वल टू 1/v। तो बच्चे इट इज 50। ओके, तो 5, इसका एलसीएम हो गया 10, 1 -2, तो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या आ गई? -10। कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ कर दी हमने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखा था हमने? -5। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। देयर, ओके, व्हाट मिस्टेक आई हैव मेड? कोई मुझे बता सकता है मैंने क्या गलती की है? फोकल लेंथ 10 हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 ही आ रहा है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस -10 आ रहा है,
ओके पर बच्चे ये तो गड़बड़ हो रही है। अकॉर्डिंग टू दी रे डायग्राम अगर आप देखो, रे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो इन्होंने तो ऑल राइट ओके ओके गॉट इट। ये F1 शो किया हुआ है, पर बच्चे ये तो कहीं F1 से तो बहुत आगे चली गई। फोकल लेंथ ही अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है बच्चे, वाई एम आई कंफ्यूज्ड इज कि फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है, मतलब फोकस पे बनेगी इमेज। दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। अगर आप रे डायग्राम में देखोगे तो उन्होंने जो इमेज बनाई है फोकस के उस साइड बनाई हुई है। पता नहीं कैसा क्वेश्चन दिया है। ओके लेट्स चेक दी आंसर देन। तो v बाई यू, v हमारा कितना आ रहा है -10। ओके -10। रे डायग्राम गलत बनाया हुआ है। मैं अगर रे डायग्राम को देख रहा हूं तो मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं। तो -10 और u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है -5। व्हाट इज दी हाइट ऑफ इमेज? हाइट ऑफ इमेज कितनी है? हाइट ऑफ इमेज मुझे फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 mm, और ये सारे सेंटीमीटर में है। ऑल राइट, तो दिस वुड बी 4 cm। अच्छा ये तो यूनिट्स ही सारे गड़बड़ आ रहे हैं। बच्चे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में है, और हाइट हमें जो दी हुई है ओके 4 cm आ गया। हियर इट इज 4 cm, ए ऑप्शन। बाकी सब मिलीमीटर में दिया, ये cm में दे दिया। इज इट करेक्ट? ये तो गलत हो गया, ये 2 mm हो गया ना। जस्ट एक मिनट। ऑल राइट, आई गॉट माई पॉइंट। सो इट इज 200 mm, और 200 mm इंटू 2 करोगे तो इट बिकम्स 400 mm, एंड 400 mm इज 4 सेंटीमीटर। ओके गॉट इट। अरे बाप रे, मतलब आई थिंक अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं सबसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन यही वाला था। एक तो इसमें रे डायग्राम गड़बड़ है और ऊपर से यूनिट की कन्वर्जन भी है। बच्चे व्हाई आर यू पिकिंग ऑप्शन सी, व्हाई नॉट ऑप्शन ए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बच्चे सेंटीमीटर में है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर मिलीमीटर में अगर देखोगे आंसर तो 400 mm है, फिर उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 4 सेंटीमीटर आंसर निकालोगे। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए है। आप सी क्यों बता रहे हो? ओके हम ये क्या, इन्होंने 0.2 cm कर दिया। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। ऑल राइट, ओके गॉट इट। हम कन्वर्जन्स में गड़बड़ कर रहे हैं। हमने इसको पहले सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट। बच्चे 0.2 सेंटीमीटर नहीं होगा। अब मुझे पता लग गया हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हमने यूनिट्स की कन्वर्जन ही नहीं की, हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं। एक मिनट रुको, लेट्स कन्वर्ट दिस यूनिट। v वुड बी इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ रही है यहां? हमने v की वैल्यू कितनी निकाली थी? v की वैल्यू निकाली है -10 सेंटीमीटर। तो बच्चे दैट वुड बी इक्वल टू -1000 mm। one centimeter is 10 mm. 1 centimeter is 10 mm. So that would be equal to 100 mm. U is equal to 10. Oh, 5 into
एक मिनट, मेरे पास आया है 10, 10 इंटू 10 100, राइट। और u की वैल्यू है बच्चे हमारे पास -5, दैट वुड बी इक्वल टू -50। अब शायद सही कर रहे हैं हम। और यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास 2 mm, तो दैट इज इक्वल टू -100 बाय -50 इंटू 2। अभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2। तो सी ऑप्शन। द रीजन आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड इज बिकॉज मैं रे डायग्राम देख रहा हूं, और जब मैं रे डायग्राम देख रहा हूं तो आई एम नॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत आंसर निकाल दिया, क्योंकि अगर फोकस पे इमेज बनी होती तो तब मैं बिल्कुल सही समझ रहा होता। कंफ्यूजन ही इसलिए क्रिएट हो रही है बिकॉज द रे डायग्राम इज रॉन्ग। रे डायग्राम इन्होंने देखो फोकस से कितना पीछे बनाया है, एंड दिस इज द रीजन वी विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि रे डायग्राम देखने से हमें लग रहा है कि हमने गलत कर दिया। ऑल राइट, तो बच्चे अब जो मेरे को आ रहा है आंसर, मेरे पास सी आ रहा है, मैंने पहले गलत कर दिया था, अब सी आ रहा है, दैट इज करेक्ट। सो आई थिंक दिस वन इज द मोस्ट मेसीएस्ट क्वेश्चन। ओके, मतलब बड़ा गंदा सा क्वेश्चन, मेरे को तो ये रे डायग्राम की बहुत गड़बड़ लग रही है। चलो, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया है सैंपल पेपर में। अभी तक तो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 48, WXYZ। ओके, W is malleable, yes yes yes, melting point high, तो मोस्ट प्रोबेबली what do we do, ये ओके, केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब वायर बनाने वाली कंपनी। तो बच्चे डब्ल्यू तो बहुत सही है, मैलिएबल और डक्टाइल नहीं है, एक्स भी गया, वाई भी गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जेड की नहीं है। तो बच्चे विच वुड बी डिस्कार्डेड? एक्स वाई जी को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि बच्चे देखो केबल वायर बनाने वाली फैक्ट्री है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चाहिए, मैलिबिलिटी भी चाहिए, डक्टिलिटी भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई। तो आपको डब्ल्यू तो सूटेबल है, एक्स वाई जेड को आप डिस्कार्ड करोगे, तो बी आंसर है इसका, बी ऑप्शन। डब्ल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एक्स वाई जेड को छोड़ देंगे। आगे चलो, वी आर ऑन टू द लास्ट पार्ट, केस स्टडीज, द सॉल्ट स्टोरी। अब बच्चे ये जो आपकी केस स्टडी है, दिस इज अबाउट अ पोर्ट टाउन 120 किलोमीटर, ऑलराइट, लेबोरियस प्रोसेस, वन सच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड इन बेकिंग, एंटासिड एंड सोडा एसिड। ओके, ये बच्चे कंपाउंड्स हमें सी वाटर से मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड? बच्चे किसमें से CO2 निकलेगी? सी ऑप्शन, कार्बोनेट सॉल्ट विद एसिड विल गिव मी CO2। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर? तो बच्चे आप यहां ध्यान से देखिए, 45 ग्राम में 6 ग्राम है, टोटल 45 ग्राम में 6 ग्राम है, ऑलराइट। तो 135 ग्राम में कितना मैग्नीशियम सल्फेट होगा? बचे 6 ग्राम इन 45 ग्राम्स, इट इज इक्वल टू x बाय 135। तो बचे इसका आंसर होना चाहिए 18 ग्राम्स। सॉल्व करके देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर 45 ग्राम में 6 ग्राम मिल रहा है तो 135 ग्राम में कितना मिलेगा? 18 ग्राम। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सेटअप करिए, आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ आ गया? ऑल राइट, चलो आगे। ये तो देखो एसिड बेसिस सॉल्ट का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? बच्चे दिस इज कॉल्ड ब्राइन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, इसको कहते हैं ब्राइन। What is the pH of acid which is used in formation of common salt?
बच्चे अगर आप कॉमन सॉल्ट को देखो NaOH प्लस HCl, HCl इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो इसका pH किसके बिटवीन होगा? pH बिटवीन 1 to 3. HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका pH होगा बिटवीन 1 to 3. क्लियर? ऑल राइट, चलो आगे. केस स्टडी बच्चे, तो लाइव प्रोसेसेस की केस स्टडी आ गई. वेरी सिंपल, हम तो सीधा क्वेश्चन ही करते हैं. एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ. बच्चे ये सेटअप किसके लिए है? यहां देखो KOH है, CO2. So this is to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis, CO2. Function of KOH is to absorb carbon dioxide. Again, very easy. Question number 55. Which of the following statements show correct results of iodine test? X and Y. बच्चे पहले वाला जो सेटअप था उसमें KOH है, तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा. दूसरे वाले में KOH नहीं है, वहां ब्लू ब्लैक कलर आएगा. So blue black color would be obtained on leaf of plant Y and no change in color on leaf of plant X. तो बच्चे प्लांट Y के अंदर कलर चेंज होगा. प्लांट Y के अंदर कलर चेंज होगा, प्लांट X के अंदर कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लांट X के अंदर KOH रखा है. क्वेश्चन नंबर 55 क्लियर? बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन. क्लियर? समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following steps can be used for making apparatus airtight? आप क्या कर सकते हो बच्चे? यहां एस्लीन लिखा है, ये वैसलीन है. यू कैन अप्लाई वैसलीन टू सील बॉटम ऑफ द जार. बच्चे वैक्यूम क्रिएट नहीं करना, ये तो हो ही नहीं सकता. कैन यू यूज अ सक्शन पंप? सक्शन पंप यूज कर सकते हैं एयर को निकालने के लिए. तो बच्चे मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन 2 and 3 होना चाहिए, बी. वैक्यूम तो क्रिएट नहीं करेंगे बच्चे, वैक्यूम तो क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है. सक्शन पंप से एयर निकाल लेंगे और वैसलीन लगाएंगे. उसके बाद है नूर. साइंस की प्रॉपर्टीज, लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ रही है. ऑल राइट, चलो लेट्स सी दिस. बच्चे दिस इज ओके. अब इसको समझ के देखिए ये क्या है. बच्चे दिस इज अ ग्लास स्लैब. ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम. ऑल राइट, what could be that she placed inside the box? A parallel sided glass block, B option. She measured the angles of incidence for both the rays on left side of the box to be 48.86 degree. She knew the refractive index of material X inside the box was 1.5. What would be approximate angle of refraction? Okay, तो बच्चे हमें पता है refractive index is equal to sin I over sin R. बच्चे put the values, get the answer. Refractive index is 1.5 और आपको यहाँ 48.6 डिग्री की वैल्यू दी हुई है. इट इज 0.75. तो बच्चे साइन आर क्या होगा? साइन आर वुड बी इक्वल टू साइन आई ओवर म्यू. तो दैट वुड बी इक्वल टू साइन आई कितना दिया हुआ है मुझे? 48.6. ओके, तो यहाँ मैं वैल्यू यूज करूंगा 0.75 एंड म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.5. तो बच्चे इट वुड बी 1/2, 0.5. और बच्चे 0.5 किसकी वैल्यू होती है? साइन आर 0.5, 30 डिग्री. ऑल राइट, आई होप ट्रिग्नोमेट्री आपको शुरू हो गया होगा. ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन स्टार्टेड. इट्स कमिंग इन टर्म 1. आई एम नॉट अवेयर अबाउट मैथ सिलेबस दिस ईयर. टर्म 1 में आ रहा है ट्रिग्नो. ओके, ऑल राइट, चलो ऑल राइट, आगे चलते हैं.
Question number 59. Her friend noted the following observations from this demonstration. Glass is optically rarer. This is true. Air and glass allow light to pass through them with same velocity. This is wrong. Air is optically rarer than glass. This is true. Speed of light through a denser medium is faster than that of rarer medium. Wrong. Ratio of sine of angle of incidence in the first medium to ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index ratio second with respect to first. Okay, this is also correct. तो बचे 1, 3 and 5 ये ऑप्शंस करेक्ट हैं. हाँ जी सिमरन. Sir, among glass and air, which one is optically denser? बेटा ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर. तो सर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है? जहां स्पीड कम होगी. तो सर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लास इज ऑप्टिकली ओके 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 ओके. यहाँ लिखा है ऑप्टिकली रेयर. करेक्ट. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यस सर. एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास. दिस इज ट्रू. स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर. गलत. तो बचे 1 and 5 आर करेक्ट. तो यहाँ 1 and 5 है. सॉरी 3 and 5 विच इज करेक्ट. तो हमने गलत कौन कौन से किए हैं? ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, 4 गलत कर दिया. 3 and 5. तो 3 and 5 किधर है? डी ऑप्शन. क्लियर. तो यहां मोर देन 1 ऑप्शन है एमसीक्यू में. ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन. If the object inside the box was made of material with refractive index less than 1.5. अगर बच्चे मटेरियल जो बॉक्स के अंदर हमने ग्लास स्लैब बनाया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.5 से कम रखेंगे वैल्यू, तो लेटरल शिफ्ट कम होगी कि ज्यादा होगी? बच्चे लेटरल शिफ्ट वुड बी लेस, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगी, पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. चलो ओके, अभी भी बहुत है. ऑलराइट, दीज क्वेश्चंस आर फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स. ऑलराइट, थ्योरी बेस्ड. चलो बच्चे आज हम यहीं रुकेंगे. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 8:15. टाइम बहुत हो गया आज. डेड टायर्ड. ओके ओके ऑलराइट. चलो सो बच्चे आई विल बी एंडिंग दी सेशन हियर. आज हम सेशन यहीं रोकेंगे. नेक्स्ट सेशन बच्चे विल बी कंटिन्यूइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर्स. वो हम नेक्स्ट पोर्शन में कंटिन्यू